हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। द मैन हु सेड हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स अबाउट इंडिया, वाज ही राइट? हु वाज चार्ली मंगर? लेट्स कम टू द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ली मंगर के बारे में। नाउ ये जो नाम है आज के समय हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो कई लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि RIP चार्ली। और उसके अलावा आप अगर गूगल पे एक बेसिक सर्च भी करोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि बिलियनियर चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इनके मेन पार्टनर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और चार्ली मंगर अपने आप में एक बहुत ही बड़े निवेशक थे। कई लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन थे। 99 इयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें ना तो आज से कई साल पहले, करीब 6-7 साल पहले, चार्ली मंगर से पूछा गया था भारत के बारे में और उस वक्त इन्होंने बहुत सारी दिल तोड़ देने वाली बातें कही थी। नाउ ये जो वीडियो है ना जहां पे ये बात करते हैं इंडिया के बारे में, करीब 2 मिनट के आसपास की वीडियो है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस कंटेक्स्ट में यहां पर ये बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। That's what I think of it. So I think now you turn to India. And I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel. And they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they forged their own chains and put them on themselves. So, no, I don't like. I do not like the prospects of India compared to the prospects of and I don't think that India is going to do as well as Lee Kuan Yew. तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, दिल तोड़ देने वाली बातें यहाँ पे उन्होंने कही है। अगेन डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। कई इशूज पे उन्होंने यहाँ पर बात करी कि भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा इंडिया में ना इनके हिसाब से हम लोगों ने डेमोक्रेसी की जो अच्छी बातें हैं वो इग्नोर कर दी, जो डेमोक्रेसी की खराब बातें हैं वो इंडिया में हर जगह आपको दिखती है। ये इन्होंने बात बोली है कि इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रोकना हो ना, कोई भी 5-6 आदमी इकट्ठा खड़े हो जाएंगे, जोर जोर से चीखेंगे और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स पॉस्को स्टील प्लांट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने समझाया कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता था, मगर सिंस भारत में लगातार प्रोटेस्ट हुए, इवेंचुअली जो ये प्रोजेक्ट है ये भारत से हटा दिया गया। और कोई चाइना जैसा देश होता, वियतनाम जैसा देश होता ना, तो ये लोग इस प्रोजेक्ट को ना छोड़ते। तो इनका ये पर्सपेक्टिव था, इनका मानना यह है कि डेमोक्रेसी से इंडिया की जो डेवलपमेंट है इसको काफ़ी लॉस हुआ है। और कई लोग हैं इंडिया में वो ये मानते हैं कि एक्चुअली चार्ली मंगर भारत को लेकर ज़्यादा ही
पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे और चाइना को लेकर ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट थे, क्योंकि चाइना में जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। चाइना में आप अगर देखो तो सोशल मीडिया में इन्हें आज याद किया जा रहा है एज ए ग्रेट इन्वेस्टर जिसने चाइना का काफ़ी फ़ायदा किया था। यूएस में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। तो इट डिपेंड्स नाउ, इनकी जो बातें हैं आपके पर्सपेक्टिव से क्या ठीक है या गलत है, क्योंकि अगेन देखो मैं इस पर अपना पर्सपेक्टिव दूंगा अनफेयर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इन्होंने ऐसी बातें कही है जिसको लेकर भारत में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है कि ये ठीक है या नहीं है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं कहूँगा कि इन्होंने जो कहा था वो सही है या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस हज़ारों लोग वैसे ही कमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या आप एग्री करते हैं चार्ली मुंगर की कमेंट से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये भारत को लेकर ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक है। आज के समय 2023-24 में अगर हम देखें तो इंडिया इज़ डूइंग मच बेटर, चाइना स्लो डाउन कर रहा है। लिटरली रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने रिपोर्ट तैयार करी है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, और इसमें इन्होंने बताया है कि 2026 तक इंडिया की जीडीपी आराम से 7% तक ग्रो करती रहेगी, जबकि चाइना की जो जीडीपी है ये 3-4% के आसपास पहुंच जाएगी इन जीडीपी ग्रोथ रेट। बट स्टिल ऑब्वियसली इन द लार्ज कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना फिर भी काफ़ी ज़रा आगे रहेगा। तो बताइएगा आपके हिसाब से चार्ली मुंगर, जिनके बारे में आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है, ही इज़ नो मोर नाउ, इनकी जो कमेंट्स थी रिगार्डिंग इंडिया आपके हिसाब से ठीक थी, नहीं थी, और आप क्यों मानते हैं कि इनकी कमेंट सही थी या नहीं थी, कुछ इसका जो रीज़न है ये भी मेंशन करिएगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल